Morning. A very good morning to all of you. This is Abhilasha Nata, your social science teacher. So, class, today we all are going to start our new topic of your chapter from trade to territory. In our previous class, we discussed about how companies started expanding its rules. Okay, how companies started expanding its rules. So now our today's topic is Tipu Sultan, the Tiger of Mysore. Okay, Mysore is a place. Just a minute. Mysore is a place in South India. ठीक है जहाँ पे जो है Mysore. So, but before independence or at the time of colonial rule, present day Karnataka, some parts of Tamil Nadu, and some parts of Hyderabad. ठीक है they were the part of Mysore. Okay, so Tipu Sultan, the tiger of Mysore. Just look at this map of India. This is the map during 1857 AD. ठीक है 1857 का आपका ये map है. So this area, just look at this area. This is Mysore. ठीक है this is Mysore. ठीक है Mysore का area है. तमिलनाडु का कुछ पार्ट है यहाँ पे और कर्नाटका है. ठीक है ये आपका Mysore है. ठीक है so we are talking about this Mysore in this topic in today's topic. Okay, Tipu Sultan, the tiger of Mysore. The company resorted to direct military confrontation when it saw a threat to its political and or economic interest. Okay, now in our previous class we discussed that after Battle of Buxar, the company started appointing residents in Indian states, and residents played a very vital role for the annexing of the Indian territory. Okay, but some states, some rulers were very strong, very powerful, very brave. They battled for their you can say they fight for their interest, they fight for their territory. Okay, so the company resorted to direct military confrontation. What is the meaning of resorted? The company started adopting military confrontation, military clashes for the to resolve the issue. जो एक पॉलिटिकल और इकोनॉमिक उन्होंने देखा कि इंटरेस्ट जो है काफी थ्रेट पहुंच रहा था. व्हेन इट सॉज अ थ्रेट कि एक डिफिकल्टी फेस करने को मिली. ठीक है उनको प्रॉब्लम्स देखने को मिल रही थी कि कुछ रूलर्स जो हैं वो प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहे हैं उनके पॉलिटिकल और इकोनॉमिक इंटरेस्ट में प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहे हैं. तो कंपनी ने इस इशू को रिजॉल्व करने के लिए मिलिट्री कन्फ्रंटेशंस जो हैं वो स्टार्ट कर दी थी. मिलिट्री मींस आर्मी. ओके ठीक है डिफेंसिव आर्मी और confrontation it means clash, conflicts. Resorted, adopted to resolve problems. So company started adopting military confrontation to resolve its issue when it saw a threat to its political or economic interest. जब उनको डर लगने लगा कि हमारा political और economic interest में अब जो है पॉलिटिकली और इकोनॉमिकली हम काफी प्रॉब्लम में हैं, हमें अब प्रॉब्लम अराइज और ज्यादा प्रॉब्लम अराइज हो सकती है. देन दे स्टार्टेड confronting they started military confrontation, direct military confrontation. But before that what happened, they appointed residents and they played diplomatic politics. Okay, diplomatic politics और यू कैन से पॉलिटिकली वो है किसी टेरिटरी को कैप्चर करने की कोशिश करते थे. ओके बट नाउ company is using direct military confrontation. जब उन्होंने देखा कि अब उनके पॉलिटिकल और इकोनॉमिक इंटरेस्ट में कोई प्रॉब्लम अराइज हो रही है. Okay, so we will understand this concept with the help of with the case of Mysore के केस से हम देखेंगे. So Mysore had grown in strength under the leadership of powerful leaders. Hyder Ali, he ruled from 1761 to 1782. Tipu Sultan, he ruled from 1782 to 1799. You may have heard about the Tipu Sultan. ठीक है और इवन आप मैसूर अगर कभी विजिट करना हुआ या किसी ने विजिट किया है तो आपने देखा होगा वहां पे काफी फेमस म्यूजियम्स और काफी हिस्टोरिकल प्लेसेस हैं एंड इट इज वेरी मच फेमस विद द नेम ऑफ टीपू सुल्तान. राइट, सो powerful Mysore had a powerful
rulers like Hyder Ali, Tipu Sultan. Mysore controlled the profitable trade of the Malabar coast. Now, where is Malabar coast? Malabar coast, ये वाला जो एरिया है आपका, let me change my pen color, ठीक है, ये वाला जो एरिया है आपका, ये वाला एरिया, ठीक है, इसको हम मालाबार कोस्ट बोलते हैं. कोस्ट क्या होता है? कोस्टल एरिया, लैंड नियर द ओशियन, ठीक है, अ लैंड नियर द ओशियन और टेरिटरी नियर द ओशियन इज नोन एज कोस्टल एरिया, ठीक है, जहां से ट्रेड करना बहुत ज्यादा इजी हो जाता है, ठीक है, वन प्लेस से दूसरे प्लेस हम जा सकते हैं विद द हेल्प ऑफ वाटरवेज, राइट. तो ये जो रेड एरिया आप देख रहे हो ये मालाबार कोस्ट है, ठीक है. और मैसूर में जो मोस्टली ट्रेड होता था, ठीक है, मोस्टली जो इंपॉर्टेंट ट्रेड्स होते थे वो प्रॉफिटेबल ट्रेड जो है मालाबार कोस्ट में, मालाबार कोस्ट का जो कंट्रोल था वो मैसूर के पास था. वेयर द कंपनी परचेज पेपर एंड कार्डमम, ठीक है. अब कंपनी यहाँ से क्या परचेज करती थी? पेपर. सबने काली मिर्च सुनी होगी, ठीक है, उसको इंग्लिश में पेपर बोलते हैं, और कार्डमम, इलायची को कार्डमम बोलते हैं. सो मैसूर के पास ये प्रॉफिटेबल ट्रेड का कंट्रोल था मालाबार कोस्ट में, जहां से कंपनी जो है पेपर एंड कार्डमम को परचेज किया करती थी. ओके, सो नाउ move to the further slide. Just look at this picture. This is the picture of Hyder Ali, ठीक है, he was the father of the Tipu Sultan, ठीक है, Tipu Sultan. This is the picture of Tipu Sultan, ठीक है. Both of these rulers were like very powerful, very brave, ठीक है. इनकी लीडरशिप बहुत ज्यादा अच्छी थी, मानी जाती है, ब्रेव लीडरशिप मानी जाती है, ठीक है. उन्होंने मतलब डरते नहीं थे ये बिल्कुल भी. So in 1785, Tipu Sultan stopped the export of sandalwood, pepper and cardamom through the ports of his kingdom, and this allowed local merchants from trading with the company. Okay, now in the year 1785, what did Tipu Sultan stop? He stopped the export of important export. पता है ना, जब आप किसी कंट्री से सामान मंगवाते हो या कोई प्रोडक्ट परचेज करते हो किसी दूसरी कंट्री से, तो दैट इज नोन एज इंपोर्ट. एंड व्हेन यू सेल प्रोडक्ट्स फ्रॉम योर कंट्री टू अनदर कंट्री, इट इज नोन एज एक्सपोर्ट. तो टीपू सुल्तान ने क्या किया? जो सैंडलवुड, चंदन है, चंदन, काली मिर्च और इलायची, ये जो एक्सपोर्ट हो रहा था इसको उन्होंने स्टॉप कर दिया अपने किंगडम से, ठीक है, थ्रू द पोर्ट्स ऑफ हिज किंगडम, ठीक है. पोर्ट्स क्या होते हैं? जो अब कोस्ट है, ठीक है, सी है, अब सी के साइड से शिप्स वगैरह जहाँ पे रहती है, ठीक है, जहाँ पे बिजनेस वगैरह होता है, शिप्स खड़ी रहती है और ट्रांसपोर्ट होता है वाटरवेज के थ्रू, तो वो एरिया जो होता है उसको पोर्ट बोलते हैं. सो ही स्टॉप्ड द एक्सपोर्ट ऑफ सैंडलवुड, कार्डमम थ्रू द पोर्ट्स ऑफ हिज किंगडम, एंड उन्होंने लोकल मर्चेंट्स को भी क्या है, डिसअलाउ कर दिया था, बैन कर दिया था, उनको अलाउ नहीं किया था कि आप कंपनी के साथ ट्रेड नहीं कर सकते हो. इट इज इलीगल इफ you do trade with the company. Okay, तो उन्होंने अपने लोकल मर्चेंट्स को, लोकल जो बिजनेसमैन थे, ठीक है, सेलर्स थे, उनसे भी उन्होंने क्या कर दिया? उन्होंने ट्रेडिंग करने के लिए डिसअलाउ कर दिया था, मना कर दिया था. He also established a close relationship with the French in India. ठीक है, अब हमने स्टार्टिंग के चैप्टर में ही पढ़ा था. We have already discussed in the starting of the chapter, like before Britishers, many other countries, many other European countries were also exploring the different land masses of the world, and one of them were French also, okay, French, Portuguese. These were also the other explorers, and they trade with India. So what did Tipu Sultan did? He established a close relationship with the French in India and modernized his army with their help. तो उन्होंने क्या किया? अपनी आर्मी को मॉडर्नाइज किया फ्रेंच की हेल्प से, उनके वेपन्स की टेक्निक सीखी, ठीक है, मॉडर्न टेक्निक्स को उन्होंने अडॉप्ट किया, एंड उन्होंने अपनी आर्मी को मॉडर्नाइज और काफी स्ट्रॉन्ग बनाया. एंड आफ्टर लुकिंग एट दिस, कि उन्होंने अब ट्रेड करने से भी मना कर दिया है मालाबार कोस्ट में. इवन वो अपने फ्रेंच के साथ रिलेशन भी इतने अच्छे बिल्ड करने लग गए हैं. एंड दिस लीड्स ब्रिटिशर्स
this leads Britishers very angry, or you can say this make Britishers very furious. बहुत ज्यादा एंग्री हो चुके थे ब्रिटिशर्स इस टाइम पे, ब्रिटिश बहुत ज्यादा एंग्री होने लग गए, फ्यूरियस होने लग गए, ठीक है। एंड इसका अब नतीजा क्या था, इसका रिजल्ट क्या था, कॉन्सिक्वेंसेस क्या थे? ब्रिटिशर्स सॉ हैदर एंड टीपू एज एम्बिशियस, एरोगेंट एंड डेंजरस. They thought, in the first slide I told you, like the company resorted to direct military confrontation. Why? Now this is one of the reason. Hyder Ali and Tipu Sultan was like so ambitious, they are so arrogant, ठीक है, मतलब you can say उनकी self dignity बहुत strong थी, और वो काफी brave थे, और उन्हें ब्रिटिशर्स को लगा ये हमारे लिए बहुत ज्यादा डेंजरस है, ऐसे रूलर्स हैं जिन्हें हमें कंट्रोल करने की बहुत ज्यादा जरूरत है, अगर हमने इन्हें कंट्रोल नहीं किया, क्रश नहीं किया, तो फ्यूचर के लिए ये हमारे लिए बहुत ज्यादा क्या है, डिफिकल्टीज लेकर आएंगे, बहुत ज्यादा हमें प्रॉब्लम हो सकती है, हमारा जो ट्रेड है वो बंद हो जाएगा बिल्कुल इंडिया से, इंडियन टेरिटरी से. सो they started battle with the टीपू सुल्तान, हैदर अली, एंड 4 wars were fought with Mysore. 4 wars हुए ब्रिटिशर्स और मैसूर के बीच में, 4 wars हुए 1767 to 1769 में, 1780 to 1784 में, 1790 to 1792 में, and the last one is 1799 where टीपू सुल्तान lost his life. ठीक है. सो जितने ये 1767 टू 69 मैसूर वॉन, ठीक है, मैसूर जीत गया था, ठीक है, मैसूर वॉन द बैटल. 1782 टू 84 में जो बैटल हुआ उसमें भी मैसूर जीत गया था. 1790 टू 92 उसमें भी मैसूर जो है जीत गया था, बट ओनली इन द लास्ट, द बैटल ऑफ सेरिंगापट्टनम, the battle of Seringapatam did the company ultimately win a victory. Finally battle of Seringapatam में ब्रिटिशर्स को, ठीक है, कंपनी ने क्या है, एक जीत हासिल की, और यू कैन से मैसूर को उन्होंने क्या कर दिया था, बैटल में हरा दिया था. तो ओनली इन द ईयर 1799 द लास्ट बैटल, जो बैटल ऑफ सेरिंगापट्टनम था, उसमें उन्होंने डिफीट किया था मैसूर को. टीपू सुल्तान was killed defending his capital सेरिंगापट्टनम. मैसूर की कैपिटल क्या थी उस टाइम पे, सेरिंगापट्टनम थी, एंड he lost his life while defending his capital, ठीक है, while defending his capital place he lost his life. So Mysore was placed under the former ruling dynasty of the Wodeyars, and a subsidiary alliance was imposed on the state. Now what happened, finally Tipu Sultan lost his life on the battle of Seringapatam. He lost his life while defending his capital Seringapatam. And what did company did now, company placed Mysore अंडर द फॉर्मर रूलिंग डायनेस्टी. डायनेस्टी इज वहां पे एक और डायनेस्टी, एक और जो है वंश चल रहा था वॉडियर्स का. दे प्लेस्ड मैसूर अंडर द फॉर्मर रूलिंग डायनेस्टी वॉडियर्स, एंड एक सब्सिडरी अलायंस. आई ऑलरेडी टोल्ड यू अबाउट द सब्सिडरी अलायंस इन आवर प्रीवियस क्लास. व्हाट इज सब्सिडरी अलायंस? व्हेन company stopped rulers to make their own military or army, and they said, if you really want military, or if you want the protection of your territory from the enemy, you have to take military forces, subsidiary forces from us, and you have to pay to us for that. Okay, so now subsidiary alliance जो था वो भी impose कर दिया गया था. It was imposed on the state Mysore in the year 1799. ओके, सो ये एक देखो, इसको बहुत अच्छा भी माना जाता है कि जो टीपू सुल्तान ने, मतलब दे वर लाइक वेरी ब्रेव, बट फाइनली व्हाट हैपेंड, ब्रिटिशर्स जो है वो ब्रिटिशर्स और कॉलोनियल रूल ने क्या किया, इनको एनेक्स कर लिया. ठीक है, सो नाउ जस्ट लुक एट दिस पिक्चर. ओके, before I explain this picture to you, we will go through a story, the legend of Tipu. Kings are often surrounded by legend and their powers glorified through folklore.
Here is a legend about Tipu Sultan, who became the ruler of Mysore in the year 1782. It is said that once he went hunting in the forest with a French friend. There he came face to face with a tiger. His gun did not work and his dagger fell to the ground. He battled with the tiger unarmed until he managed to reach down and pick up the dagger. Finally, he was able to kill the tiger in the battle. After this, he came to be known as the Tiger of Mysore. He had the image of the tiger on his flag. Now, what happened? मतलब there are so many legends like Tipu Sultan, Maharana Pratap, uh, there are so many legends like them, ठीक है, and we often heard about them, about their bravery, ठीक है, even queens were there, ठीक है, जैसे पद्मावती है, ठीक है, उनके बारे में हम काफी कुछ सुनते हैं, एंड उनकी जो स्टोरीज हैं, उनके पावर्स के बारे में हम कैसे सुनते हैं, काफी फोकलोर मतलब कि स्टोरीज सुनते हैं, सॉन्ग्स के थ्रू, पोम्स के थ्रू हमें उनके बारे में पता चलता है. सो हियर इज अ लेजेंड टीपू सुल्तान, ठीक है, जो 1782 में मैसूर के क्या बने, रूलर बने. He became the ruler of Mysore in 1782 and it is oftenly said that कि he went मतलब कि क्या थी स्टोरी कि he went hunting in the forest with a French friend. अब बताया था ना कि फ्रेंच के साथ उन्होंने अपने क्लोज रिलेशंस बिल्डअप कर लिए थे. तो once he went hunting in the forest with a French friend and वहां पे फेस टू फेस उनको क्या है, टाइगर मिल गया था. उनकी जो उनकी जो गन थी वो वर्क नहीं कर रही थी. डैगर, डैगर क्या होता है, नाइफ जैसा होता है डैगर, ठीक है, काइंड ऑफ नाइफ ही होता है डैगर, ठीक है, बहुत शार्प पॉइंट होता है उसका. तो वो डैगर भी जो है ग्राउंड में गिर गया था, ठीक है, वो नाइफ भी ग्राउंड में गिर गया था. नाउ ही बैटल्ड विद द टाइगर अनआर्म्ड, ठीक है, उनके पास कोई वेपन्स नहीं थे, ना डैगर था, ना नाइफ था, ना गन थी, और उन्होंने क्या है, हाथों से ही अपनी अनआर्म्ड होके ही उन्होंने क्या किया था, टाइगर के साथ लड़ाई की. एंड कब तक लड़ाई करते रहे, जब तक कि वो डैगर को मतलब नाइफ को उन्होंने पिक नहीं कर लिया जमीन से. So finally what he did, he killed the tiger in the battle and इसके बाद से उनको क्या बोला जाता है, he came to be known as the tiger of Mysore. और ऐसा भी बोला जाता है उनका जो फ्लैग है, just look at this flag, ठीक है, मेरे को ज्यादा क्लियर फ्लैग की इमेज मिल नहीं पाई, जो मिला मैंने यहाँ पे अपलोड यहाँ पे पिक्चर लगाई है. सो ये एक फ्लैग है उनका और ऐसा माना जाता है कि उनके फ्लैग में जो है टाइगर का जो है इमेज भी है, ठीक है. सो दिस इज द लेजेंड, ठीक है, द लेजेंड ऑफ टीपू एंड दिस इज द स्टोरी बिहाइंड व्हाई ही कॉल्ड एज द टाइगर ऑफ मैसूर. नाउ जस्ट लुक एट दिस इमेज, ठीक है, क्या शो कर रहा है, ये टाइगर है, ठीक है, और ये एक फ्रेंच, यू कैन से नॉट फ्रेंच, यू कैन से कि ब्रिटिशर एक ऑफिशियल ऑफिसर की इमेज है, ठीक है. ये टीपू's टॉय टाइगर. दिस इज द पिक्चर ऑफ अ बिग मैकेनिकल टॉय दैट टीपू possessed. You can see a tiger mauling a European soldier. When its handle was turned, the toy tiger roared and the soldier shrieked. This toy tiger is now kept in the Victoria and Albert Museum in London. The British took it away when Tipu Sultan died, defending his capital Seringapatam on 4th May 1799. Now this tiger toy, ठीक है, एक मैकेनिकल टॉय था जो टीपू सुल्तान ने बनवाया था, टीपू सुल्तान के लिए बनवाया गया होगा, ठीक है. नाउ इस टाइगर, ये जो पिक्चर है, ये जो टॉय था कैसे वर्क करता था, आप देख रहे हो कि ये जो टाइगर है वो क्या कर रहा है, यूरोपियन सोल्जर को खा रहा है, या फिर यू कैन से कि अटैक कर रहा है. मॉलिंग मीन्स टू अटैक. So you can see a tiger is attacking on a European soldier, ठीक है, and when its handle was turned, जब इसका हैंडल जो है, देखो एक मैकेनिकल टॉय है, आपने चाबी भरने वाला टॉय देखा होगा, जस्ट लाइक दैट वैसा ही टॉय है ये, ठीक है. जब इस टॉय को क्या किया जाता है, हैंडल को जब टर्न किया जाता है तो ये टाइगर
कि रोर करता है और वो सोल्जर है वो क्या कर देता है, सोल्जर की आवाज आती है, मतलब कि जो डेथ हो जाती है या फिर हमें दर्द होता है तो जैसे आवाज आती है ना वैसे आवाज आती है, वो मर जाता है। दिस टॉय टाइगर इज नाउ केप्ट इन विक्टोरिया एल्बर्ट म्यूजियम है लंदन में, वहां पे विक्टोरिया में क्या है, इस टॉय को रखा हुआ है। एंड ब्रिटिशर्स ने ये टीपू सुल्तान जब when he was defending his capital Seringapatam on 4th May 1799, उस टाइम पे उनकी डेथ हो जाती है और उस दिन वहां से ब्रिटिशर्स जो है इस मैकेनिकल टॉय को लेके चले जाते हैं, राइट। सो class, this is all about today, this is all about this topic, the Tipu Sultan, the tiger of Mysore. I told you with the help of this case study of Mysore, be able to study why Britishers started direct military confrontation in the Indian territory, and after looking at the bravery of some rulers like Tipu Sultan, तो उन्होंने मिलिट्री कन्फ्रंटेशन, डायरेक्ट मिलिट्री कन्फ्रंटेशन को स्टार्ट कर दिया था। आफ्टर दैट वी हैव सीन व्हाई टीपू सुल्तान इज नोन एज द टाइगर ऑफ Mysore. We have gone through the story behind it, okay, and this unique mechanical toy, we talk about this toy also, okay. So class, this is all about today. Thank you so much for joining the class, and in our next class we will talk about our next topics, war with Marathas and the claim of paramountcy. We will talk about it in our next class, okay. So